हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड वी आर स्टडीइंग टैक्सोनॉमी, द यूनिट टैक्सोनॉमी एंड फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी यूनिट का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा था। तीन पार्ट हम उसके ऑलरेडी कवर कर चुके थे। दिस इज द फोर्थ पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड द प्रीवियस 3 वीडियोज। इफ यू हैवंट वॉच्ड देम, go through the channel, watch these videos because taxonomy is a very important unit for your upcoming examination of MNS 21. Okay, so before proceeding, I want to give you few informations. If you are an MNS aspirant and you are preparing for your MNS 21 examination, then you can join our online courses. There you will get 2 to 3 hours live classes, PDF notes, as well as you will get test series. So you can contact us on the given number which is continuously being displayed on your screens. साथ ही साथ our number is also available in the description box of the video. You can get our number from there. इसके अलावा if you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. इसके अलावा you can follow us on Instagram, Telegram, Facebook. We are using almost every social media app. You can subscribe our Telegram channel. You will get some PDF notes there also. So here we are going with the video series of explanation. So what is the difference between these series and our live classes? There you can interact us directly and you can raise your doubts. We will solve your doubts. We are trying to remove all your queries, or we are trying to give answers of all your queries. So there will be one-on-one interaction between us and you people. So if you are an MNS aspirant and you are so willing to qualify the written examination of MNS 21, then don't forget to join our online courses. चलिए, now we are moving towards our video. We are moving towards our किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की तरफ बढ़ते हैं। R.H. विटेकर, जैसा कि हम अपने पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि R.H. विटेकर हैज़ गिवन अस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और जो 5 किंगडम थे वो कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. So we have already studied about the kingdom Monera. This is the second kingdom of 5 kingdom classification, that is kingdom Protista. Okay, Protista के बारे में पढ़ते हैं। कौन से organisms को kingdom Protista में include किया गया है? So all the unicellular eukaryotes. Remember one thing, all the unicellular eukaryotes are included in this kingdom. कौन कौन से ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. नाउ व्हाट आर यूकैरियोट्स? Eukaryotes are those organisms, or you can say eukaryotic cells are those cells which are having a well defined nucleus, and their genetic material is enclosed in न्यूक्लियस. यानी ऐसी सेल जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और जिसके अंदर उनका न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड रहता है, दे आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स. दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स. इनमें बहुत वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. सो दे आर यूकैरियोटिक सेल्स. तो ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर केप्ट अंडर किंगडम प्रोटिस्टा. सारे के सारे जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स किंगडम प्रोटिस्टा में चलो बात कर ली, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है, लेकिन उनमें भी कौन कौन सी कैटेगरी हैं जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आएंगे और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे? तो देयर आर 5 कैटेगरीज विच आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा. दे आर क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, slime molds and protozoans. There are 5 categories. They are chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. They are considered as unicellular eukaryotes and we have kept them under the kingdom Protista. हमने इन्हें प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है. एक एक करके हर एक कैटेगरी की बात करेंगे और जानेंगे कि इनके ऑर्गेनिजम्स की क्या खासियत है और इनके ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, क्या इनमें स्पेशल फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं. तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद क्राइसोफाइट्स.
आज हम कोशिश करेंगे कि क्राइसोफाइट्स के बारे में जानें। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स टू ग्रुप्स। इसमें क्राइसोफाइट्स में 2 ग्रुप्स हैं, कौन कौन से? डेस्माइट्स एंड डायटम्स। डायटम्स एंड डेस्माइट्स आर इंक्लूडेड इन क्राइसोफाइट्स। इन्हें क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड किया गया है। डेस्माइट्स, अगर डेस्माइट से सिर्फ आपकी एनसीईआरटी में भी दिया होगा, एक जनरल क्वेश्चन अराइज होता है कि डेस्माइट का दूसरा नाम बताइए। डेस्माइट्स का दूसरा नाम क्या है? तो दैट इज गोल्डन एलिगी। क्या नाम है इनका दूसरा? गोल्डन एलिगा। डेस्माइट्स का दूसरा नाम गोल्डन एलिगा है, आपको ये याद रखना है। दे आर मोस्टली मराइन एक्वेटिक होते हैं, ये मराइन वाटर, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, और इनका दूसरा नाम क्या है? गोल्डन एलिगा। आपको ये याद रखना है कि डेस्माइट्स का दूसरा नाम क्या है? गोल्डन एलिगा। इसके साथ डाइटम्स। डाइटम्स के बारे में आपको 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर देम। डाइटम, सबसे पहला जो इनका स्ट्रक्चर है, दे आर हैविंग सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस होता है उसका, ठीक है। जो भी इनकी सेल वॉल होती है दैट इज हैविंग सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस। अब सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस कैसा हुआ? तो इसमें सेल वॉल में इनकी 2 लेयर्स होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी सेल वॉल में 2 लेयर होती हैं कुछ इस तरीके से, और ये जो इसका दोनों लेयर होती हैं वो आपस में इस तरीके से अरेंज होती हैं कि ये सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस आपको देती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अराइज किया जाता है कि विच ऑर्गेनिज्म या फिर विच इज हैविंग सेल वॉल विच गिव्स सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस, दैट इज डाइटम्स। डाइटम्स में क्या होगा? जो इनकी सेल वॉल होगी वो सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस देगी। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो, माई इंटेंशन आफ्टर रीडिंग मीन्स आई एम रीडिंग, आई एम रिसाइटिंग, और यू कैन से आई एम continuously speaking one sentences for 2 or 3 times. So this is the reason, the reason behind this कि I want you to learn with me, ठीक है। This is the reason behind this कि I want you to learn with me so that after the video you are having 4 to 5 points or all the important points in your mind, ताकि आपको घर जाके रट्टा ना लगाना पड़े। आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड होने तक आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिव टॉपिक के वो आपको याद हो जाएं। इस वजह से हर एक लाइन को मेरी कोशिश रहती है कि 3 से 4 बार रिवाइज़ कर लूँ, ताकि अगर आपके वो कानों में वो पड़े तो आपको वो अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो सेल वॉल कैसी है? सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस है, किसका? डाइटम्स का, यानी डबल लेयर्ड इनकी सेल वॉल है और सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस दे रही है। इसके अलावा इनकी क्या खासियत है? दे आर फाउंड इन मराइन, ये मराइन वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा डाइटम्स की एक ये खासियत है, ये दे आर स्टोर्ड एट द बॉटम ऑफ द एक्वेट, मतलब जहाँ पे रहते हैं, दे आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ वाटर सोर्स। ये वाटर जो रिसोर्सेज होते हैं उनके बॉटम, उनकी तली पे पाए जाते हैं, एंड दे आर स्टोर्ड देयर, ये वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। साथ ही साथ जो इनके देखो डेड हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो इनकी सेल वॉल होती है दैट इज़ डेड, वो सेल वॉल इनकी क्या होती है? डेड होती है। सेल वॉल वैसे भी एक डेड स्ट्रक्चर है, दैट इज़ नॉट अ लिविंग स्ट्रक्चर। ये डेड स्ट्रक्चर है सेल वॉल का। जब ये वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, और सेल वॉल वैसे ही हार्ड होती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, एंड दिस सेल वॉल इज हैविंग अ सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस। तो ये क्या होता है? डायटोमेशियस अर्थ बनाती है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड, डायटोमेशियस अर्थ। डायटोमेशियस अर्थ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइटम्स। किससे मिली हमें? डाइटम्स में मिली। डायटोमेशियस अर्थ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइटम्स, और ये काफ़ी कहते हैं ना कि सॉलिड होती है, इसके काफ़ी डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं कौन? डाइटम्स। साथ ही साथ डाइटम्स आर यूज इन शू पॉलिशेस। डाइटम्स का जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? शू पॉलिशेस में भी डाइटम्स का यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स फॉर क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के ये मेन पॉइंट्स थे। If you want then you can take a very quick screenshot. We will be back with the dinoflagellates and I will try कि आज dinoflagellates के जितने भी important points हैं वो भी हम आप इसकी वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाए। Take a very quick screenshot. We will be right back. Okay. So now we will study about dinoflagellates. Dinoflagellates. अगर आप इनके नाम से ही इनके बारे में याद करना चाहें तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। Their name is made up of 2 terms. इनका नाम 2 terms से मिलकर बना हुआ है। These 2 terms are dino and flagellates, यानी they are having 2 flagellas. इनके पास क्या होते हैं? 2 flagella होते हैं, ये इनकी खासियत है। They are having 2 flagellas and one flagella is longitudinally
longitudinally present and second flagella is transversely present. यानी these are the organisms which are having two flagellas and one is longitudinally present and second one is transversely present. Now we will see one by one the characteristic properties of dinoflagellates. Okay, they are mostly marine and photosynthetic. ये क्या होते हैं, बहुत सॉल्टी वाटर में अधिकतर पाए जाते हैं एंड दे आर फोटोसिंथेटिक विच मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. दे आर हैविंग सेल वॉल दैट हैज़ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट. इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा ये स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स की बनी होती है जिसे हम थीका कहते हैं. ठीक है, सेल्यूलोजिक जो प्लेट होती है जो इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होती है दैट सेल्यूलोजिक प्लेट इज़ नोन एज थीका. तो आप ये चीज़ें इनके बारे में याद रखेंगे. इसके साथ दे आर हैविंग टू फ्लैजेला रेड. इसके बाद आपने टाइड्स का नाम सुना होगा कि ओशन में टाइड्स आ गए, ठीक है, या फिर कहीं वाटर में किसी वाटर रिसोर्सेज में टाइड्स आ गए. तो रेड टाइड्स, जो रेड टाइड्स आती हैं दे आर बेसिकली ड्यू टू रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स. ये किसकी वजह से होती हैं, ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होते हैं. तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने थे. इसके अलावा नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं बेटा, यूग्लिनॉइड्स आर ऑल्सो कंसीडर्ड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा. इन्हें भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है. साथ ही साथ इनकी खासियत क्या होती है इनके बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं. यूग्लिनॉइड्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में. यानी इनमें प्लांट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी और एनिमल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी. सो यूग्लिनॉइड्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके बाद यूग्लिनॉइड्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल. They lack a cell wall and in place of cell wall they are having a protein coat. That protein coat is known as pellicle. इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती. सेल वॉल की जगह एक प्रोटीनेशियस कोट पाया जाता है. दैट प्रोटीनेशियस कोट इज़ नोन एज पेलिकल. उसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं. साथ ही साथ इनमें भी फ्लैजिला होते हैं, ठीक है. दे आर ऑल्सो हैविंग 2 फ्लैजिलास. इनमें भी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं. इसके बाद जो मेन इनसे क्वेश्चन बनता है, दे आर हैविंग मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है. अब व्हाट इज मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉपिक यानी मिला जुला, ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक यानी मिला जुला. दे आर बोथ फोटोसिंथेटिक, फोटोऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉप्स. यानी ये क्या है, फोटोऑटोट्रॉप्स भी हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी हैं. इनमें दोनों ही तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है. दैट्स वाई दे आर मिक्सोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिशन में कैसे हो जाते हैं, बेसिकली मिक्सोट्रॉपिक. अब व्हेन दे विल बी फोटोऑटोट्रॉफ, व्हेन दे विल बी हेट्रोट्रॉप, क्या होगा, देखो व्हेन दे आर यूग्लिनॉइड्स आर हैविंग क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट. ठीक है, इनमें क्लोरोफिल की तरह पाए जाने वाला पिगमेंट होता है. इनमें क्लोरोफिल की तरह पिगमेंट पाया जाता है. तो दे आर एबल टू कुक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना लेते हैं. सो व्हेन दे आर मेकिंग देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन दे आर बिहेविंग एज फोटोऑटोट्रॉफ. ठीक है, बट व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन देयर इज नो सनलाइट, देन दे आर हेट्रोट्रॉप्स एंड दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. देन दे आर बिहेविंग एज हेट्रोट्रॉप्स. सो अल्टीमेटली दे आर हैविंग मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, अल्टीमेटली इनमें क्या है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है. तो यूग्लिनॉइड्स के बारे में जो आपको याद रखने वाली बातें हैं ये हैं कि यूग्लिनॉइड्स को भी एक तो आपके किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है. साथ ही साथ इनमें सेल वॉल की जगह पेलिकल पाई जाती है, दैट इज़ अ प्रोटीनेशियस कोट. इसके अलावा इनमें भी फ्लैजिला पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो हैविंग 2 फ्लैजिला. दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स दे आर हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. साथ ही साथ दे आर हैविंग मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनमें न्यूट्रिशन कैसा है, मिक्सोट्रॉपिक. समवॉट दे आर फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड समवॉट दे आर हेट्रोट्रॉप्स. ये सारी बातें आपको याद रखने वाली हैं. टेक अ वेरी क्विक स्क्रीनशॉट. वी विल बी राइट बैक विद अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो. Now we will study about slime modes and protozoans. They were also included under kingdom Protista. स्लाइम मोड्स के बारे में आपको ज़्यादा नहीं, बस 2-3 लाइनें याद रखनी है.
स्लाइम मोड्स दे आर ऑल्सो नोन एज मिक्सोमाइसिटीज। ठीक है, क्या याद रखना है, स्लाइम मोड्स को हम एक और नाम देते हैं, वो क्या है, मिक्सोमाइसिटीज। इसके अलावा दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन जब इनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, जब ये स्पोर्स बनाते हैं तो देयर स्पोर्स आर हैविंग सेल वॉल, उनमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यानी नॉर्मल कंडीशन में जो आपके स्लाइम मोल्ड्स हैं उनमें कोई सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, लेकिन जब इनमें स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, स्पोर्स बन जाते हैं, तब इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर सेक्शन दैट इज़ प्रोटोजोआ, और आपको प्रोटोजोआ के बारे में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, प्रोटोजोआ बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा जाना जाता है पैरासाइट के तौर पे, यानी बहुत सारे प्रोटोजोअन्स हमारे में या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिजीज़ेस कॉज करते हैं। एक एक करके जानते हैं। प्रोटोजोआ को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन। उनमें कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन है, यानी कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो उनके लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। दीज 4 ग्रुप्स आर अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोआ। ठीक, अमीबॉइड जो ग्रुप है इसमें क्या होता है, अमीबा एंड एंट अमीबा, इसके बेसिकली 2 एग्जाम्पल्स हैं। अमीबा एंड एंट अमीबा आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी अमीबॉइड, और इसमें क्या होता है, दे आर हैविंग स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट, तो स्यूडोपोडिया आर बेसिकली हेल्पफुल फॉर लोकोमोशन इन अमीबा एंड एंट अमीबा। इनमें क्या होगा बेटा, कोई भी ट्रू फीट नहीं पाए जाते, दे आर हैविंग स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट हैं। फॉल्स फीट क्या होते हैं, किसी भी इनके साइटोप्लाज्म में से किसी भी तरफ एक उभार निकल आता है जो इनके वॉकिंग में और मूवमेंट में साथ ही साथ अपने फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, तो इनमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। दे डो नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप, इनका कोई भी एक फिक्स्ड शेप नहीं होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्रोटोजोअन जिनमें स्यूडोपोडिया पाए जाएं और स्यूडोपोडिया की मदद से लोकोमोशन हो, उन्हें आप किस में रख रहे हो, अमीबॉइड्स की कैटेगरी में। और एग्जाम्पल कौन से हैं, अमीबा एंड एंट अमीबा। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोम्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इनमें क्या पाए जाएंगे, फ्लैजिला आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। इनमें लोकोमोशन किसकी मदद से होता है, फ्लैजिला की मदद से होता है। एंड एग्जाम्पल इज ट्रिपैनोसोमा। एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपैनोसोमा। अच्छा, यू हैव टू कॉमेंट कि ट्रिपैनोसोमा, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा। यू हैव टू टेल मी दिस, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन। आप वीडियो देखिए, पढ़िए, और अगर वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। इफ़ आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है, फ्लैजिला। नेक्स्ट वन इज सीलिएटेड। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में लोकोमोशन में हेल्प करते हैं सीलिया, यानी दे आर हैविंग सीलिया इन देम, सीलिया की मदद से लोकोमोशन होता है। एंड एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। पैरामीशियम एक सीलिएटेड प्रोटोजोअन है, और इसके बारे में आपको जो खास बात याद रखनी है, दैट इज़ इट्स शेप। इसके शेप, जो इसका शेप होता है, ये एक स्लिपर के लाइक होता है। ठीक है, इस वजह से पैरामीशियम इज ऑल्सो नोन एज स्लिपर एनिमलक्यूल। ठीक है, पैरामीशियम को हम क्या कहते हैं, स्लिपर एनिमलक्यूल। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पैरामीशियम इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ हैविंग मोर देन 1 न्यूक्लियस। पैरामीशियम में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वो होते हैं मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस, उनका अपना अपना काम होता है कि मैक्रो न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है और माइक्रो न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है। बट आपको याद रखने वाली क्या बात है कि पैरामीशियम इज ऑल्सो नोन एज स्लिपर एनिमलक्यूल एंड पैरामीशियम इज हैविंग मोर देन 1 न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, दैट इज स्लिपर लाइक, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज स्लिपर एनिमलक्यूल। इसके बाद स्पोरोजोअन्स की तरफ बढ़ते हैं। दे डो नॉट हैव एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, इनमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। एंड अ वेल नोन एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। एक बहुत अच्छा वेल नोन एग्जाम्पल है, दैट इज प्लाज्मोडियम। एंड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज इटसेल्फ प्लाज्मोडियम। मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज प्लाज्मोडियम।
जो भी फीमेल एनाफिलीज है दैट इज़ अ वेक्टर, दैट इज़ नॉट अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। फीमेल एनाफिलीज क्या है, सिर्फ एक वेक्टर की तरह काम करती है, प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन जो मेन कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ प्लाज्मोडियम। मलेरिया का जो मेन कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ प्लाज्मोडियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया, तो दैट इज़ प्लाज्मोडियम। ओके, so this was the kingdom protista for you. I hope I have covered each and every important point that is mentioned in your NCERT और आपको वीडियो के साथ साथ याद भी हो गया होगा। समझ में आया है, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और कमेंट में बतानी है, वो है इसका आंसर कि विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा। ओके, लाइव क्लासेस, अब वी आर गोइंग टू एंड द एनरोलमेंट आफ्टर फ्यू एंट्रीज। तो कुछ लिमिटेड सीट्स बाकी हैं लाइव क्लासेस के लिए, जल्दी से इनरोल करिए। 2 से 3 घंटे की लाइव क्लासेस होती हैं और बता दूं कि इस समय अभी केमिस्ट्री चल रही है, साथ ही साथ डेली 1 घंटे बायो होती है, करंट अफेयर्स भी आपको वहाँ पे नोट कराए जाते हैं और इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। तो हर सेक्शन आपका कवर किया जाता है उन लाइव क्लासेस में। आपको PDF नोट्स भी मिलते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है। सून वी आर गोइंग टू एंड द एनरोलमेंट फॉर आवर लाइव सेशंस। कुछ ही सीट्स बाकी हैं, लिमिटेड सीट्स आर लेफ्ट। सो प्लीज़, इफ़ यू आर एन MNS aspirant and you are so desperate to qualify your MNS 21 examination, then don't forget to join our online courses. Number is being displayed continuously on your screens. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for being with us. Thank you everybody. Now you can take a very quick screenshot. Thank you for being with us.